حضرت عثمان غنی کا جو دور آیا اس دور میں یہود و نصارہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے ابتدائی طور پر جو کام کیا وہ یہ کیا, پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, سورہ مائدہ کی آیت ہے, اس آیت کو اپنا ہتھیار بنایا. اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی جو آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, اس آیت کو اپنے ہتھیار بنایا. یعنی ان دونوں آیتوں کا مفہوم میں اگر آپ کو مرادی معنی اور مفہومی مرادی معنی کر دوں وہ یہ ہے کہ واجعل لی وزیرا من اہلی, کہ اہل میں سے وزیر ہونا چاہیے. تو اس کو مد نظر رکھ کر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں کہا کہ جی ان کو نبی پاک کا وزیر ہونا چاہیے تھا. یہ وہ بنیاد تھی حافظ صاحب, جس بنیاد نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا, میں صرف یہاں پر اشارہ دے کے آگے نکلوں اگرچہ اس میں بڑی تفصیل ہے, ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے خلاف پورا پروپیگنڈا تیار کر کے کھڑے ہو گئے, پورا پروپیگنڈا تیار ہوا. لیکن اس کے باوجود جب حضرت عثمان غنی کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو آپ نے بڑے زیرک اور دانا لوگوں کو مختلف صوبوں میں بھیجا اور جا کر پوچھا کہ کہا کہ جا کے لوگوں سے پوچھو کہ میرے جو عمال ہیں, میرے جو گورنر ہیں, وہ میرے عمال سے کسی کو شکایت تو نہیں ہے. تو جب یہ لوگ واپس آئے تو واپس آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رپورٹ دی کہ آپ کے عمال سے, آپ کے گورنروں سے کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے. صحیح, آپ نے حج کے موقع پر یہ اعلان کیا, آپ نے فرمایا آج عثمان یہاں میدان عرفات میں موجود ہے, جس کو میرے کسی گورنر سے کوئی بھی شکایت ہے جی وہ یہاں پر آ کر شکایت کرے, میں اسی وقت اپنے گورنر کو اتارنے کی پوزیشن میں اتار دوں گا. اس طرح کی شورشیں اٹھی. تو ایک وقت ایسا بھی آیا, بڑے بڑے صحابہ کے ناموں سے مورے لگا کے خط لکھے گئے مولا علی کو. اچھا, مولا علی کو خط لکھے گئے کہ ہم تنگ ہیں, حضرت عثمان کے گورنر یہ کر رہے ہیں, حضرت عثمان کے گورنر یہ کر رہے ہیں. المختصر یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس بھی وہ خطوط آئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف یا دیگر جو صحابہ جو بڑے صحابہ اس وقت تھے ان کے پاس بھی آئے. اب موقع یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات کے پاس جب یہ لوگ 12,000 لوگوں کا لشکر, کچھ لوگ مصر سے چلے, کچھ لوگ شام سے چلے, کچھ لوگ عراق سے چلے, 4-4 ہزار لوگ لے کر چلے. حضرت عثمان غنی کو حضرت مولا کائنات کو جو لشکر ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خط لکھا تھا کہ اٹھو عثمان کے خلاف جہاد کرو, اس وقت یہ بہت بڑا جہاد ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لاؤ ذرا چٹھی دکھاؤ. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری رائٹنگ ہی نہیں, میں کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ورضہ کے خلاف تمہیں ابھاروں گا اور اس کو جہاد قرار دوں گا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کی ٹیم کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا, لیکن اسی طرح 4,000 لوگ دوسرے صحابہ کو بھی ملے, 4-4 ہزار کر کے. مولا کائنات بے فکر ہو کر تشریف لے گئے, لیکن آپ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یار میں نے کہہ دیا, میں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن وہ بلوائی پورا ایک محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا وہاں پر کھڑے ہو گئے. جب تیسری خلافت کا دور تھا اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے. مورخ نے لکھا ہے واقعہ, تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا, انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی, کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا, باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے طریق مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں تھا؟ طریق ماتھے پہ پسینہ آیا. طریق نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پر. وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا. میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9, 10, 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے, لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں, حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے, علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے. پہلا نبی کی بیویاں. دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی, جو پرانے مدینے کے باسی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا. یہ امیر لوگ, یہ رائل فیملیز, یہ جگیردار طبقہ, یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا. یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے. غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا. وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی, اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو.
रब्बुक। उसने कहा ओए गुलामों वो नजर आता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्यों मानते हो? उन्होंने कहा वो कहता है। ये असल इस्लाम के लोग थे। इन्होंने चमड़ियां उखड़वाई, इन्होंने नबी को नहीं छोड़ा। ये दौलत के लालच की वजह से नहीं आए थे, ये अली की तलवार के डर से नहीं आए थे, ये बीबी खदीजा से कर्जे माफ करवाने के लिए नहीं आए। इन्होंने स्टेट नहीं देखी, इन्होंने ये नहीं देखा कि इस्लामी सल्तनत बन जाएगी, इस्लामी हुकूमत बन जाएगी, हम में से कोई गवर्नर हो जाएगा, कोई वजीर खजाना हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ किरदार मुस्तफा देखा। इन लोगों ने भी तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। तवज्जो से बात सुनते आइए। वजह क्योंकि इनका मुतालबा यह था कि एक बंदे को नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से बाहर निकाला था। उस बंदे को नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से बाहर निकाला था। मरवान उसका नाम था, हकम का बेटा था। बाप और बेटा दोनों मिलके रिसालते माप गलियों में चलते थे, ये पीछे नबी की नकलें उतारते थे और नबी को तानो तशनी माजल्ला सुम्मा माजल्ला तौहीन करते थे। नबी ने हुक्म नहीं दिया, उसने दिया कि तू बर्दाश्त कर लेता है, मुझसे नहीं। इन्हें मदीने से बाहर निकाल, इन्हें मदीने से इतना बाहर निकाल के तेरे बाद जो भी तेरी जगह पे आए वो इनको मजीद बाहर निकाल देता। जब तीसरा खलीफा आया तो बजाय इनको बाहर निकालने के इसे मदीने बुलाया। सिर्फ मदीने ही नहीं बुलाया, इससे मिस्र जैसी अहम रियासत का गवर्नर बना दिया। मिस्र का गवर्नर बना दिया। मिस्र उस दौर की सबसे महंगी इस्लामी रियासत थी, सबसे ज्यादा पैसा मिस्र से आता था और सबसे बड़े खाइन को उसके ऊपर गवर्नर लगा दिया। मदीने के लोगों ने जो पुराने रहने वाले थे वो इकट्ठे होके आए हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के पास। कौन कहता है कि हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? बिस्मिल्लाह। मोहम्मद बिन अबी बकर के पास और उन्होंने आके मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा कि आप जाके मौला अली से कहें कि उसे कहे कि उसे मिस्र की गवर्नरी से हटाए। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त मौला अली के पास घर आए। और एक बात मैं और अपने बच्चों को बताऊं, मुसलमान तारीख ने बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने 3 हुकूमतों में जो मौला अली का दौर था उसे लिखा कि अली ने दौर जो है ये खामोशी में गुजारा, गोशा नशीनी में गुजारा। अली घर से नहीं निकलते थे, अली कुरान जमा करते थे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये अली जैसी शख्सियत के साथ कि अली के उतने लंबे दौर को सिर्फ चंद जुमलों में बंद कर दिया गया। बंदे कहते अली कुरान जमा कर रहे थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? मेरी समझ में आज तक ये फलसफा नहीं आया। वो कौन सा कुरान था जो अली जमा कर रहे थे? कुरान तो सारा अली के सीने में, बल्कि अली खुद कुरान का जिस्म। अली कहां से कुरान जमा कर रहे हैं? अगर मैं इसमें पूरी 45-50 मिनट गुफ्तगू की जा सकती है। मौला अली का वो जो दौर था वो बड़ा इनकलाबी दौर था। मौला उस दौर में मदीने में नहीं रहते थे, मौला मदीने से चले गए थे। मदीने के थोड़ा बाहर जाके मौला ने एक अपना फार्म हाउस बनाया था जिसका नाम यम्बो था, जिसे आज मदीने में बीरे अली के नाम से याद किया जाता है। ये मौला ने मदीने के बाहर जाके बना दिया था। इस पूरे दौर में मौला ने पहली बार जो कुएं खोदे थे, ये मौला ने 24 कुएं उस दौर में अपने हाथों से खोदे थे। कुएं से पानी लेके जमीनों तक पहुंचाना मौला अली ने अपने दौर में शुरू किया था। सबसे पहले कपास मदीने में मौला अली ने काश्त की थी। यही कपास जिसकी रुई घर आती थी, बीबी काटती थी, चादरें बनाती थी, और उसी रुई की हाथ की बने हुआ रुमाल आज भी हुर के हाथे पे। अब मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मौला अली के पास गए। मौला अली से कहा कि मौला आप इससे जाके कहें खलीफा से कि ये उसको माजूल करे। मौला मोहम्मद अबी बकर को साथ लेके दरबार में गए। जब दरबार में पहुंचे तो नौकर ने जाके उन्हें बताया कि असल हाकम आया है। उठ के आगे उन्होंने मौला अली से पूछा, जी हाँ जी, वसी रसूल है, जानशीन पैगंबर, दमाद रसूल, आप क्यों आए? मौला फरमाया मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तूने उसे मिस्र का गवर्नर क्यों लगाया? जिसका आपने हुक्म करते हैं तो हम उसे अभी ओहदे से हटा देते, तो आप कोई मौजू बंदा आप दे दें जिसे हम मिस्र का गवर्नर लगाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर मौला अली के साथ खड़े थे। उसे मोहम्मद बिन अबी बकर तरफ देखे कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद से ज्यादा मौजू कोई नहीं है, इसे मिस्र का गवर्नर लगा देते। फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से। मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ, मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने
इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, ज़हमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर न करना। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के जहन में ये बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसका अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था, तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। कहीं पे पड़ाव हो गया, पड़ाव होके आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हुए, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है, अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे, या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे जीन रख, बंदा पकड़। जब घोड़े पे जीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों पर। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज़्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीज़ा है पानी का, पानी का मशकीज़ा निकालो। निकालो। क्या इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया। हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत को निकाला, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, खत को बंद किया, मुंह मदीने की तरफ करके, और सफरों से बचाने वाले, और नीयतों के लहजे सुनने वाले, और इरादों से बाखबर, मालिक करम हो गया तेरा, बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन अबी बकर के कदम रुके थे, या अली की हुजरे से आवाज आई बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला जब खबर थी मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। हासिल आ गई दुनिया अली जैसा इमाम। बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते। जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो मदीने के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि आज अली जलाल में है। उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी। कांधे पे रख के मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर नेज़े बरदार मशाले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे। अली का जलाल तख्त से जमीन पे गिरा, न ताज संभला न आवाज संभली। बिड़बिड़ाते हुए अली के सामने आके जी या अली हुक्म। अली फरमा के ये कासा तेरा है? मोहम्मद खत दे, खत तेरा है? अली ने फरमाया
चमड़ा दरबार का है, क्योंकि उस दौर में सरकारी खतूत लिखने के लिए मखसूस चमड़ा इस्तेमाल होता था, जो बाजार में बेचना खरीदना जुर्म था। मौला फरमाइए ये चमड़ा दरबार का है, अब उससे इनकार नहीं हो सकता। दस्तखत तेरे हैं, मोहर तेरी है, कासत तेरा है, घोड़ा दरबार का है, जी मेरा। इतना कहना था या अली मुड़े बिना तशबीह, अली चलने लगे पीछे। या अली बात तो सुनिए, बस अब अली की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाय हाय हाय, बस अब अली की जिम्मेदारी। मौला बात तो सुनिए, मौला मेरी अली दरबार से बाहर चले। दरबार से बाहर गए, खबर मदीने में आग की तरफ फैल गई। जो एक ग्रोह पहले ही दुश्मनी में आमादा था, उनके हाथ ये जवाब आ गया। उन्होंने खलीफा के घर का घेराव कर लिया। पूरी रात बंदों ने घर का घेराव किए रखा। तारीख में जुमले ना हो, मैं इस शौक में गर्दन का लहू दूं। इसने दीवार के पीछे एक चीज रख के उस पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को बताए कि मैं प्यासा हूं, कोई अली को जाके खबर दे के मैं भूखा हूं। इतना सख्त पहरा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। या यकदम गली में दो साए दाखिल हुए। सिपाहियों ने कहा रोको रोको रोको, इसे कौन है? पीछे से आवाज आई, रास्ता दो, हसन और हुसैन आ रहे हैं। नेज़े हटे। जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा, सखी ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर, शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा, तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था। हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे, मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी, पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा, ये रात बड़ी अहम है। उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ, खलीफा का खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। एक नबी की बीवी जो है वो मदीना से इसी खलीफा से नाराज होके बसरा चली गई थी। उन्हें बसरे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है, कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुकूमत पे कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया। अली ने रस्ते में जाके कहा, इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया, क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रास्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तल्हा और जुबैर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा, आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था, जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं।